Hello everybody, I am Shweta and we are studying chapter CSS in Advanced Web Designing. In last lecture, we have studied three types of style sheet, that is inline, internal and external. From that, I am going to use internal style sheet in all examples. So let's begin. After watching this video, you will come to know how to use grouping selectors and class and ID selectors. Before starting grouping selectors, you should know what is selectors because I am going to use this selector words many times like grouping selectors, class selectors, ID selectors, universal selectors, and many more such types of selectors. So, what is this selector? Selector, we have already discussed about this thing. It is nothing but it is an HTML tag or HTML elements. So, selectors क्या होते हैं? ये HTML tag होते हैं या फिर HTML elements भी जिसे कहा जाता है. जैसे कि examples h1, h2, h3, h4, h5, h6, then bold tag, italic, underline, big, small, etc. Many more HTML tags are there. So these are called as selectors. So now let's start our grouping selector. So what is this grouping selectors? Grouping means what? Grouping means to keep together all the elements or all the things together, that is called as grouping. Okay, and selectors means what? All HTML tags or we can say HTML elements. So the meaning of this grouping selectors will become what? Keeping all the HTML tags or HTML elements together. Okay, ग्रुपिंग सेलेक्टर का मीनिंग क्या हो गया? सारे HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स को साथ में रखेंगे, उसे कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर्स. लेकिन किस किस HTML टैग्स को हमें साथ में रखना है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. द ग्रुपिंग सेलेक्टर selects all the HTML elements with the same style definition. तो कौन से HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स को साथ में रखना है? जिसका स्टाइल सेम है. ओके, what it says means all the HTML tags, those who are having the same style, that you can group together. Okay, यानी for example अगर H1, P और B ये तीन टैग्स है मेरे पास, ये तीनों टैग को मुझे सेम स्टाइल देना है. सेम स्टाइल जैसे तीनों के टेक्स्ट को कलर रेड आना चाहिए, तीनों को अंडरलाइन आना चाहिए और तीनों टैग्स को बॉर्डर क्या आना चाहिए? डबल. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया. तो ये तीनों को भी सेम स्टाइल चाहिए. तीनों को सेम स्टाइल चाहिए तो मैं उन सबको एक साथ रख सकती हूँ. बराबर. तो उनको सबको तीनों को एक साथ रखेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुपिंग सेलेक्टर. Okay, so that is grouping selector where we want to keep the HTML elements with the same style together. Okay, that is grouping selector. Next point, this reduces the code and extra effort to declare common styles for each element. तो इसका कहने का क्या मतलब है? अगर मैंने तीनों को एक साथ कर दिया, जो तीनों एग्जाम्पल लिए थे मैंने, वो तीनों को सेम स्टाइल है. तीनों को अगर सेम स्टाइल है तो मैंने तीनों के लिए अलग कोड नहीं लिख रही हूँ. आई एम नॉट राइटिंग डिफरेंट कोड्स फॉर ऑल द थ्री. इंस्टेड ऑफ दैट आई एम राइटिंग वन सिंगल code and I'm keeping all this three tags together. So this what will happen because of this will be reducing the code. कोड छोटा हो जाएगा. 3 बार वो सेम सेंटेंस लिखने की बजाय मैं एक ही इसमें लिख रही हूँ तो मेरा कोड छोटा हो गया. देन एक्स्ट्रा एफर्ट, जो भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे थे तीनों को डिक्लेयर करने के लिए कॉमन स्टाइल्स को, तो वो भी मेरा कम हो गया. बराबर है. तो तीनों के लिए अलग से लाइन, हाँ मीन्स कैसे लिखते थे? अगर हम लोग ग्रुप नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे लिखने वाले थे? H1 फिर उसके कर्ली ब्रेसेस फिर उसको स्टाइल देने का, कलर रेड, देन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फिर बॉर्डर कॉलन व्हाट डबल. तो सेम कोड मुझे कितने बार लिखना पड़ेगा? 3 बार. H1 के लिए
T के लिए और B के लिए. तो instead of writing 3 times, what I'm going to do? I'm going to group them together. Okay, I'm going to group them together and I'm going to write a single line code for them. Color red, text decoration underline, border double. Okay, so that is going to reduce my code as well as my efforts also. Lastly, we can say that to group selectors, each selector is separated by a comma. तो सेलेक्टर्स को एक साथ रखने के लिए वो हमेशा वो HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स किससे सेपरेट करने हैं हमको? कॉमा से. जैसे मैंने 3 कौन से लिए थे? H1, P और B. तो H1 के बाद कॉमा देने का, फिर P, comma B. Then you have to write the style, whatever you want to declare. That we will see in the next slide, where I'm going to give you the example of using grouping selector. So I hope this is clear to you. Now, let us see example of grouping selectors. Here we are going to see the example without group selector. Okay, I'm not using group selector. So before using group selector, how our code is, that we are going to see. Here I'm using 3 tags, 3 HTML elements. These are what? H1, H2 and P. These are selectors. These are HTML tags. These are HTML elements, or we can also call them as selectors. All are having same style. All are having same style. So for that, for example, this is the style given to them, text align center and color red. So all these 3, they are having the same style. So without using group selector, how I will write the code? In this fashion. Okay, head, style, H1, curly braces, text align center, color red, H2, text align center, color red, P, text align center, color red. Now instead of writing this 3 times, what happened? This is, I have to write 3 times all these things, same thing, similar things I have to write 3 times. So instead of writing 3 times, I will use group selectors and I will reduce my code. See, this reduces. This is example with group selectors. Same example, by using group selectors, I have reduced my code. You can see this length of this code and length of this code. It has been reduced. H1, H2, P and the style. समझा कैसे होता है विदाउट ग्रुप सेलेक्टर्स एंड विद ग्रुप सेलेक्टर्स? विदाउट ग्रुप सेलेक्टर्स में मुझे 3 बार वो सेम सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, 3 बार मुझे सेम स्टाइल लिखना पड़ रहा है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम स्टाइल 3 बार लिखने से अच्छा मैंने क्या कर दिया? तीनों सेलेक्टर्स को एक साथ लिख दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया. ओके, और फिर स्टाइल लिख दिया. हो गया. इससे क्या हो गया? मेरा कोड रिड्यूस हो गया. इसका विदाउट यूजिंग ग्रुप सेलेक्टर इसका कोड इतना बड़ा था और मैंने ग्रुप सेलेक्टर कर दिया तो क्या हो गया? मेरा कोड रिड्यूस हो गया. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुपिंग सेलेक्टर्स. सो समझा ये ग्रुपिंग सेलेक्टर्स क्या होता है? अब हम उसका कोडिंग देखते हैं. एक कोडिंग देख के देखते हैं कि कैसे लिखते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर्स इन कोड. Let us see coding for grouping selectors. So here there is one question. We have to write code for this. Write coding where 4 selectors should contain same style, like color should be blue, text should be striked off, letter spacing should be 60 pixels and font size should be 30 pixels. तो पहले इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो मुझे 4 सेलेक्टर्स लेने. कोई भी 4 सेलेक्टर्स आप लिख सकते हो जिसको आपको सेम स्टाइल देना है. कोई भी 4 सेलेक्टर्स जिसको आपको सेम स्टाइल देना है, जैसे कि उसके टेक्स्ट का कलर ब्लू होना चाहिए, टेक्स्ट स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए, यानी टेक्स्ट के बीच में से लाइन जाना चाहिए. लेटर स्पेसिंग 60 पिक्सल्स. इसका मतलब होता है एक लेटर के बाद 60 पिक्सल का स्पेस छोड़ेगा, दूसरा लेटर लिखेगा, फिर 60 पिक्सल का गैप छोड़ेगा, फिर दूसरा लेटर, ऐसे करके आपका पूरा टेक्स्ट लिखेगा. एंड फॉन्ट साइज शुड बी 30 पिक्सल. और उसका फॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए? 30 पिक्सल की इतना. ओके, तो ऐसा सेलेक्ट करो जिसका ये स्टाइल सेम रहेगा. फिर एंड अनदर, यानी वो 4 सेलेक्टर्स हमको एक ग्रुप में लिखने हैं जिसके स्टाइल हम लोग सेम लिखेंगे. एंड अनदर 3 सेलेक्टर्स, और 3 सेलेक्टर्स मुझे लेने हैं. जो सेलेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे रहेंगे वो सेलेक्टर्स मुझे यहाँ पे नहीं लिखने हैं.
दोनों सेलेक्टर्स अलग अलग होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे H1 B U I ऐसे टैग्स यूज किए तो यहाँ पे H1 B I U नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे आप H2 लिखो, बिग स्मॉल जो भी चाहिए आपको, जो भी टैग्स पता है वो यूज कर सकते हो। देन उनका स्टाइल क्या होना चाहिए, बॉर्डर शुड बी डॉटेड, उनको सबको बॉर्डर कैसा आना चाहिए, डॉटेड। टेक्स्ट अलाइनमेंट शुड बी राइट, टेक्स्ट हमेशा राइट साइड में आना चाहिए। देन बैकग्राउंड कलर शुड बी ऑरेंज, उनका बैकग्राउंड का कलर कौन सा रहेगा, ऑरेंज। पैडिंग शुड बी फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम, चारों तरफ से मैंने 50 पिक्सल्स ही रखा है। यहाँ पे मैंने px नहीं लिखा है, आप कोडिंग के टाइम पे लिखो। ओके, सो 50। तो व्हाट इज अ पैडिंग, पैडिंग मीन्स व्हाट, वो लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल छोड़ेगा, राइट साइड से भी 50 पिक्सल छोड़ेगा, टॉप से भी 50 पिक्सल्स और बॉटम से भी 50 पिक्सल्स छोड़ के टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा, दैट इज पैडिंग। ओके, सो दिस क्वेश्चन, now before seeing my coding you tried by yourself, so you will come to know have you understood or not. Okay, कोडिंग समझा कि नहीं समझा ये आपको कब पता चलेगा, अगर आपने ये कोडिंग खुद से किया। मेरा कोडिंग देखने से पहले आप खुद ट्राई करो, कोई भी 4 सेलेक्टर्स लो, उसको सेम स्टाइल दो, कोई भी 3 सेलेक्टर्स लो, उसको ये वाला स्टाइल्स देना। ओके, तो ये आप सॉल्व करके देखो, फिर मेरा कोडिंग चेक करो कि आपने जो लिखा है वो बराबर है या नहीं। आपका स्टाइल और मेरा स्टाइल डिफरेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टाइल तो क्वेश्चन में दिया है वही मैंने यूज किया है। सेलेक्टर्स डिफरेंट आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टाइल सेम रहना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी द कोडिंग। दिस इज द कोडिंग फॉर दैट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था उसके लिए ये कोडिंग है। तो यहाँ पे मैंने कौन से 4 टैग्स या सेलेक्टर्स लिए हैं, H1 B I बिग, ये मेरे 4 सेलेक्टर्स हैं और उनको मैंने कौन सा स्टाइल दिया है, कलर ब्लू, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, लेटर स्पेसिंग 60 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। ओके, फिर मैंने 3 सेलेक्टर्स अलग लिए हैं, वो कौन से हैं, P H2 H3, ये मेरे 3 सेलेक्टर्स है जिनको सेम स्टाइल है। कौन सा स्टाइल दिया है, बॉर्डर डॉटेड, टेक्स्ट अलाइन राइट, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, पैडिंग राइट 50 पिक्सल, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल। ओके, देन क्लोज द स्टाइल, क्लोज द हेड। बॉडी में मैंने H1 B बिग I P H2 H3, देखो ये हम ऐसा नहीं है कि इसी सीरीज में लिखना है, ये हम लोग कहाँ पे भी लिख सकते हैं, बस जो भी टैग आए रहेंगे उसको वो स्टाइल अप्लाई करने वाला है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे ही लाइन में यहाँ पे कोडिंग लिखना है, ऐसे लाइन में लिखना है कंपलसरी नहीं रहता है, हम कैसे भी टैग्स यूज कर सकते हैं। इन सब को H1 को ये वाला स्टाइल आएगा, देन B को भी यही स्टाइल आएगा, फिर बिग बिग को यही स्टाइल आएगा, फिर I को भी यही स्टाइल। ओके, देन P ये स्टाइल, H2 ये स्टाइल, H3 ये स्टाइल, और ये सीक्वेंस आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, लेकिन जो भी स्टाइल दिया रहेगा वो आउटपुट में आने वाला है। नाउ लेट अस सी द आउटपुट फॉर दिस कोडिंग। नाउ आउटपुट, दिस इज द आउटपुट फॉर दैट कोडिंग। तो आउटपुट में आ गया हेलो, ब्लू कलर, दिस ऑल्सो ब्लू कलर, दिस ऑल्सो ब्लू, दिस ऑल्सो ब्लू। ये 4 मैंने एक के नीचे एक लिखे थे इसलिए सबको वो ही आया, ऐसा नहीं है, आप ये वाला भी ऊपर ले सकते हो, ये भी ऊपर ले सकते हो। while writing coding you can write all that things. okay, so एक साथ दिखना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। so blue color 4 selectors, then striked off and letter spacing and font size देखो सबका same font size है। so this is that 4 selectors which we gave for color blue, text decoration should be line through, then letter spacing should be 60 and font size should be 30. then next one is what, next 3 selectors मैंने लिए थे paragraph, H2 H3 something was there like that. okay, तो वो तीनों के लिए same डॉटेड बॉर्डर डॉटेड आया तीनों को भी। देन फिर क्या आया, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। टेक्स्ट अलाइनमेंट इज राइट साइड, देखो तीनों भी टेक्स्ट राइट साइड में आ गए हैं। देन पैडिंग, पैडिंग देखो
यहाँ से भी उसने 50 पिक्सल छोड़ा है, यहाँ से 50 पिक्सल्स, यहाँ से 50 पिक्सल्स, ऊपर से 50, नीचे से 50, और ये राइट साइड में है इसलिए यहाँ पे नहीं समझेगा कि लेफ्ट साइड का 50 पिक्सल छोड़ा है कि नहीं। जब टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रहेगा तो आपको समझेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटपुट। सो आई होप grouping selector is clear to you. So try it with another example and see whether you know how to do it or not. Okay, if you face any problem, ask me. So now we will see ID selectors in CSS. Now from this name ID, what do you mean? ID means what? Identity, unique thing, right? Like your Aadhaar card number, PAN card number, they all are what? Unique. They are your IDs and they are unique. They cannot be same. Okay, your ID, your Aadhaar card number, my Aadhaar card number, all will be different. Okay, their numbers will never be same. So IDs are not same. They are always different. They are always unique. So now what is this ID selector? Let us see. The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. So what this means? This says that for whichever HTML element you want ID selector, for that you have to use ID attribute. यानी जिस भी HTML एलिमेंट या HTML टैग को आपको ID बोलना है, बनाना है, ID क्या होता है? यूनिक। तो जिस भी HTML टैग को आपको यूनिक रखना है, डिफरेंट रखना है सबसे, उसके लिए हमें ID एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। उस एलिमेंट के सामने आप ID एट्रीब्यूट लिखो। ओके, और वो ID एट्रीब्यूट के अंदर आपको नाम लिखना रहेगा आपके ID का। आईडी का नाम जो भी लिखोगे वो उसके सामने लिखना है। कैसे? वो यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताने वाली हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. क्या मतलब है इसका? This means that in your HTML page there will be always one ID used. Okay, हमेशा एक ही ID यूज करने वाले हैं, तो हमेशा ID करोगे आप? एक ही। यानी स्टाइल देने के लिए जो भी आईडी आप यूज कर रहे हो वो भी एक रहना चाहिए, और आपके HTML पेज के अंदर आप कितने आईडीज को बुलाओगे? सिर्फ एक ही आईडी को, यानी सिर्फ एक ही HTML टैग को आप आईडी दे सकते हो। ओके, सो आईडी हमेशा यूनिक होता है, तो हमेशा जिस भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लगता है कि ये टैग यूनिक है, तो उसी के सामने आप आईडी दे सकते हो। ओके, सो जैसे कि मोस्टली हमारे एग्जाम्पल्स में हमेशा हेडिंग कैसे रहता है? सबसे अलग दिखना चाहिए। जैसे इस पेज में CSS ID सेलेक्टर, ये मेरा हेडिंग है, तो ये हेडिंग इन सबसे अलग दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे फॉन्ट सेम रहेंगे, लेकिन ये जो हेडिंग दिया रहता है वो हमेशा अलग फॉन्ट में और अलग स्टाइल में आता है, तो क्योंकि ये अलग दिखना चाहिए, ये यूनिक रहता है इसलिए। सो उसी तरह से आपके HTML डॉक्यूमेंट में जो भी HTML टैग यूनिक दिखना चाहिए, सिर्फ उसी को आपको आईडी देना पड़ता है। ओके, बाकी किसी को नहीं। Lastly, to select an element with specific ID, write a hash character followed by the ID name. इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम ID यूज कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो ID है? जहां पे भी आप ID यूज करते हो उसका नाम हमेशा हैश होता है। जो भी आईडी का नाम दोगे आप, वो हमेशा प्रिसाइडेड बाय हैश रहेगा, यानी हमेशा स्टार्टिंग में उसके हैश लगता है, फिर आईडी का नाम रहता है, और वो ही नाम हम हमारे एलिमेंट्स या टैग के सामने लिखने वाले रहते हैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, तो हैश रहेगा तो हमेशा समझ में आना चाहिए कि वो आईडी है। और जो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं क्लास के लिए हम लोग हमेशा सिंबल यूज करते हैं डॉट। तो डॉट देंगे तो समझता है कि वो क्लास है, और हैश रहेगा सिंबल तो क्या समझता है कि क्या है? वो आईडी है। ओके, सो लेट अस सी इट विद एग्जांपल। तो देखो, ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने CSS आईडी के लिए। आईडी कैसे लिखते हैं उसके लिए एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने हैश दिया है, तो हैश क्या होता है? हैश अगर सिंबल है तो वो क्या है? आईडी। तो यहाँ से मुझे, यहाँ पे मैंने आईडी लिखा है क्या? नहीं, लेकिन ये सिंबल से मुझे पता चलता है कि ये क्या है? आईडी है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो
आईडी लिखा है, H1 के सामने आईडी एट्रीब्यूट यूज किया है। हाँ, तो ये देखता है, पहले ये इसके साथ टैली करेगा कि आईडी है तो स्टाइल में हैश दिया है, क्या हैश है, तो ये आईडी करेक्ट है। फिर नाम इज इक्वल टू स्टार, तो ये जो स्टार है ये तुम्हारे आईडी का नाम होता है, तो ये आईडी का नाम देखेगा बराबर है क्या स्टार, तो ये स्टार है तो बराबर है। फिर ये जो भी स्टाइल लिखा रहेगा ये आईडी के लिए वो पूरा अप्लाई हो जाता है इसको, ये हेडिंग को। ओके, हेडिंग ब्लू कलर में आएगा और टेक्स्ट सेंटर में, यानी हेडिंग सेंटर में रहेगा। ओके, तो ये तरीका है आईडी लिखने का। आईडी में जो मैंने पहले बोला था आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो ये है आपका एचटीएमएल एलिमेंट और ये है आपका आईडी एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आईडी का नाम। तो यूनिक होना चाहिए, मीन्स पेज में पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही बार आईडी आना चाहिए। अब इसके नीचे आप कितना भी सेंटेंस कितने भी टैग्स यूज करोगे तो उस टैग में आप क्लास कितने बार भी बुला सकते हो, लेकिन आईडी हमेशा एक ही बार बुलाओगे। यहाँ पे भी एक ही बार रहना चाहिए और यहाँ पे भी एक ही बार देना। क्लास आप कितने बार भी लिख सकते हो और बॉडी में कितने बार भी क्लास को बुला सकते हैं, लेकिन आईडी को हमेशा एक ही बार बुलाया जाता है। ओके, सो दैट इज अबाउट आईडी। देन one note is there, an ID name cannot start with a number. This is very important. ID name हमेशा, ये जो स्टार है ना ये मैंने नाम दिया है आईडी को, ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हो, सेम नाम यहाँ पे आना चाहिए कॉल करते समय, नाम में चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, और ये नाम कभी भी नंबर से चालू नहीं होता है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है, अगर मैंने इसके सामने स्टार के सामने मैंने 1 नंबर डाला, 2 नंबर, कोई भी नंबर डालेंगे तो इट इज इनवैलिड आईडी। ओके, इट इज इनवैलिड नेम। ओके, नेम हमेशा चालू किससे होना चाहिए, कैरेक्टर से, या फिर स्पेशल कैरेक्टर से चालू होगा तो भी चलेगा, अल्फाबेट से चालू होगा तो भी चलेगा, लेकिन नंबर से कभी चालू नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आईडी सेलेक्टर। See when to use ID, that thing should be very clear in your mind. ID हमेशा यूनिक के लिए होता है। मुझे पता है कि आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 2 आईडीज लिख के देखे, H1 को आईडी लिखा है और एक पैराग्राफ भी लिखते हैं, उसको भी आईडी देके देखते कि रन होता है क्या। यस, इट इज गोइंग टू रन होने वाला है। आप यहाँ पे भी 2 बार आईडी दोगे तो भी रन होगा, लेकिन उनका कहने का यही मतलब है कि जो भी एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, जो बड़े बड़े लेवल्स पे ये प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन लोग हमेशा क्या करते हैं, आईडी एक ही बार लिखते हैं जो यूनिक रहने वाला है। जैसे कि किसी भी इसका बार कोड जो लगाया रहता है हर एक प्राइस टैग्स में, प्राइस हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, लेकिन जो उन लोग का हर एक सीरियल नंबर जो रहता है वो सीरियल नंबर हमेशा यूनिक रहता है, सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। सो ऐसे इसके लिए उन लोग आईडी रखेंगे, और क्लास किसके लिए रखेंगे, प्राइस के लिए, जो हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, तो ये सब उनके लेवल के लिए थिंकिंग है। आप मुझे पता है कि ये आने वाला है तो फिर क्यों ऐसा बोला कि वो यूनिक है, वो एक ही बार यूज करना चाहिए। इन्हें सिर्फ इतना बोलना है कि आईडी हमेशा एक ही बार यूज करो और एक ही एलिमेंट को यूज करो, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट अस सी द कोडिंग फॉर दिस एंड आउटपुट फॉर दैट कोडिंग ऑल्सो। Now, coding for ID selector. How to write coding for ID selector? Let us see. See, this is the coding for ID selector. Now here, I am writing hash. Hash है तो क्या समझ में आता है कि ये है ID. ओके, नाम क्या दिया है मैंने, para1. स्टाइल क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर रेड, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। नाउ ये जो स्टाइल, ये जो मुझे पैरावन मैंने जो लिखा है, अब ये नाम आप कहाँ पे भी बुला दो, जिसको भी आपको यूनिक रखना रहेगा आपके पूरे HTML पेज में, उसमें ये बुला दो, इस कॉल करो, उसके लिए वो अप्लाई हो जाएगा और वो यूनिक है ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने PID लिखा है पैरा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ P आप H1 लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो क्योंकि मोस्टली हेडिंग के लिए हम लोग यूनिक रखते हैं इसलिए, लेकिन आपको लगेगा कि सिर्फ H1 को यूज करना है और बाकी किसी को नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैरा लिखा है। पैराग्राफ टैग को मैंने आईडी यूज किया है, आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा para1, यानी ये आईडी एट्रीब्यूट मैंने P एलिमेंट के साथ में यूज किया है। देन मैंने टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड, और ये नेक्स्ट पैरा है, इसको मैंने आईडी नहीं दिया है, दिस इज सिंपल टेक्स्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा आउटपुट में,
ये जो आईडी पैरा लिखा है ये पहले देखेगा कि क्या मेरे स्टाइल में ये पैरा यूनिक वाला जो लिखा है, ये जो सेलेक्टर है ये है क्या। तो फिर वो सर्च करेगा, हाँ हैश दिख रहा है यानी आईडी के लिए है। फिर वो नाम देखेगा, पहले टैली करता है, पहले वो देखता है कि ये ही नाम है क्या, पैरा 1। तो देखेगा पैरा 1 है, ओके, तो यानी ये जो भी स्टाइल लिखा है वो मेरे लिए है। ओके, फिर ये स्टाइल वो इस टेक्स्ट को अप्लाई कर देगा। तो हेलो वर्ल्ड कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आएगा और उसका कलर रेड आएगा और उसका साइज 40 पिक्सल्स आएगा। लेकिन ये जो पैराग्राफ लिखा है तो उसके लिए कोई भी ये स्टाइल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो ये यूनिक रहना चाहिए, इसलिए सिर्फ यूनिक के लिए ही देंगे। हमेशा हर एक बार आईडी नहीं कॉल कर सकते, एक ही बार उसको कॉल करना पड़ता है। पूरे HTML पेज में आईडी कितने बार रहना चाहिए, एक ही बार रहना चाहिए। अभी समझा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों यूज किया, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे P लिख देती थी तो भी हो जाता था, लेकिन नहीं, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ P यूज किया तो क्या हो जाएगा, जितने भी पैराग्राफ टैग्स आ रहेंगे सबको अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जितने भी P, अभी ये भी P को फिर अप्लाई हो जाए, अगर मैंने यहाँ पे P लिखा रहता तो दोनों पैराग्राफ को ये स्टाइल अप्लाई हो जाता था, सो दैट इज इनकरेक्ट। तो आईडी मीन्स एक ही के लिए आना चाहिए, इसलिए मैंने हैश पैरा 1 जहाँ पे भी चाहिए वहां पे उसको कॉल कर दिया। यानी हम लोग ये बाद में भी सोच सकते हैं कोडिंग लिखने के बाद कि मैं किसको यूनिक आईडी बनाऊं, मैं किसको आईडी बनाऊं, उसके सामने मैं इसको कॉल कर दूंगी। ओके, so this is the coding for ID selector. Now let us see the output of this coding. Now this is the output for ID selector. So H पहला पैरा जो था उसके लिए ये अप्लाई हो गया। ओके, हेलो वर्ल्ड सेंटर में आ गया, उसका कलर रेड आ गया और क्या हो गया, वो उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये यूनिक है, पूरे पेज में ये यूनिक है, कुछ तो अलग दिख रहा है, बाकी ये सिंपल टेक्स्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एज आईडी सेलेक्टर्स। कैसे लिखना है पता चल गया। तो नेक्स्ट अभी देखेंगे क्लास सेलेक्टर क्या होता है। नाउ लेट अस सी क्लास सेलेक्टर। सो व्हाट इज दिस क्लास सेलेक्टर? The class selector uses the class attribute of an HTML element to select a specific element. यानी जो HTML एलिमेंट को हमें क्लास देना है उसके सामने आपको क्लास एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। ओके, तो आईडी एट्रीब्यूट में क्या करते थे हम लोग, आईडी के सेलेक्टर में क्या करते थे, HTML एलिमेंट के सामने आईडी एट्रीब्यूट लिखते थे। जिस भी HTML टैग को हम लोग को आईडी देना है उसके सामने आईडी एट्रीब्यूट लिखते हैं, और जिस भी HTML एलिमेंट को हमें क्लास देना है उसके सामने क्लास एट्रीब्यूट लिखते हैं, और फिर क्लास का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट, the class selector is used when you want to change a group of elements within a page. हम क्लास सेलेक्टर कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपके यानी बहुत सारे HTML टैग्स को हमें सेम स्टाइल देना है। ओके, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ पेज मीन्स एक HTML पेज के अंदर बहुत सारे टैग्स है जिसको हमें सेम स्टाइल देना है, सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज क्लास सेलेक्टर। ओके, यानी क्लास सेलेक्टर कब यूज हुआ करते हैं, जब मल्टीपल एलिमेंट्स को हमें स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही टाइम पे चेंज हो सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम लोग क्लास अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेंज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, और आईडी हमेशा सिंगल एलिमेंट और यूनिक रहता है, इसलिए हमेशा एक ही बार यूज करते हैं। क्लास सेलेक्टर कितने बार भी यूज कर सकते हो एक HTML पेज के अंदर। ओके, to select an element with a specific class, write a dot character followed by the class name. So class name किससे चालू होना चाहिए, डॉट से। ओके, क्लास कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है, डॉट दिख के, डॉट सिंबल दिखते ही समझ में आता है कि ये क्या है, क्लास है। हैश सिंबल रहेगा तो क्या रहता है, आईडी। ओके, सो आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है, दोनों सिंबल्स का भी डिफरेंस होता है। वो आईडी में हैश सिंबल यूज होता है, क्लास में डॉट सिंबल यूज होता है। आईडी यूनिक रहता है, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए यूज होता है। क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, और वो यूनिक नहीं होता है, वो मल्टीपल एलिमेंट्स को अप्लाई हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी विथ एग्जांपल। सी दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने स्टाइल के अंदर डॉट पैरा ये नाम दिया है। डॉट है तो क्या होता है, क्लास होता है। ओके, और पैरा, पैरा क्या है, पैरा ये पैराग्राफ नहीं है, ये क्लास का नाम है। नाम कुछ भी रख सकते हो आप, सिंगल एलिमेंट सिंगल अल्फाबेट भी लिखोगे, ए लिखोगे तो भी चलेगा, वो उसके लिए
क्लास का नाम ही रहने वाला है। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डॉट है, फिर ये जो स्टाइल लिखा है ये सिर्फ इसी क्लास को अप्लाई होगा। अब ये क्लास हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे वो टैग को वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी टैग में दो टैग्स लिखे हैं, एक पैराग्राफ टैग है और एक बोल्ड टैग है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को भी क्लास कॉल किया है पैरा, तो वो देखेगा क्लास इज इक्वल टू पैरा बराबर है क्या, यहाँ पे वो टैली करेगा, डॉट है तो क्लास है और क्लास का नाम पैरा है तो ये बराबर है। तो पैराग्राफ कौन से टेक्स्ट, ये पैराग्राफ जो टेक्स्ट है इसका कलर क्या आएगा, रेड, और इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। सिमिलरली मैंने बोल्ड के लिए भी क्लास अप्लाई किया है और मैंने सेम नाम दिया है, सेम क्लास बुलाया है, तो सेम क्लास यहाँ पे भी आएगा और सेम स्टाइल बोल्ड को भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं मल्टीपल कितने बार भी क्लासेस को बुला सकती हूँ बॉडी के अंदर। एक HTML पेज के अंदर हम कितने भी क्लास को बुला सकते हैं और यहाँ पे हम लोग कितने भी क्लासेस लिख सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन आईडी ऐसा होता है क्या, नहीं, आईडी इसके अपोजिट वर्क करता है। आईडी हमेशा यहाँ पे भी एक ही रहना चाहिए और HTML बॉडी के अंदर भी एक ही बार बुलाना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी द कोडिंग ऑफ क्लास सेलेक्टर। Now, coding for class selector. So see, this is the coding for class selector. Here dot center. Dot center क्या होता है, dot means class, center क्या है, class का नाम है और इसका स्टाइल क्या दिया है, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, कलर ऑरेंज, बॉर्डर डॉटेड। अब ये क्लास में जिस भी एलिमेंट या जिस भी टैग के सामने बुलाऊंगी उसको वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो H1 को भी मैंने क्लास लिखा है, P को भी मैंने क्लास लिखा है, कौन सा क्लास है, सेंटर। ओके, तो दोनों को भी सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम कितने भी क्लास लिख सकते हैं और अगर मुझे क्लास चाहिए तो मैं और एक क्लास लिख के दिखाती हूँ। सपोज मैंने और एक क्लास लिखा, मैंने बोल्ड को भी यही क्लास लिखा। ओके, बोल्ड क्लास इज इक्वल टू सेंटर। ओके, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ग्रेटर देन साइन और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है बोल्ड। ओके, देन क्लोज बी। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों को भी मैंने सेम क्लास दिया है तो इस बोल्ड को भी ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हम और एक यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस भी लिख सकते हैं, या जैसे डॉट सेंटर लिखा है उसी तरह से हम डॉट पी, डॉट सी, डॉट ए, डॉट स्टार, कौन से भी क्लास का नाम और क्लासेस भी लिख सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड दी ID selectors. Okay, now let us see the output of this coding. अब आउटपुट में मैं ये नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मैंने सिर्फ अभी लिखा है तो ये आउटपुट में आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दोनों का आउटपुट आपको दिखेगा। Okay, now let us see the output. Now, output of class selector. तो देखो मैंने हेडिंग के लिए और पैराग्राफ के लिए दोनों के लिए मैंने वो स्टाइल लिखा था, बराबर है, दोनों के इसमें मैंने क्लास को कॉल किया था तो जो भी स्टाइल हम लोगों ने लिखा था वो इसको अप्लाई हो गया है, दोनों के लिए सेम स्टाइल अप्लाई हो गया। ओके, तो इसी तरह से एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकते हैं लेकिन एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी हमेशा एक ही रहेगा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आईडी क्या होता है और क्लास क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, व्हाट इज आईडी एंड व्हाट इज क्लास, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। ग्रुपिंग सेलेक्टर तो समझ में आ गया कि एक साथ सारे सेलेक्टर्स जिसको सेम स्टाइल चाहिए वो सबको एक साथ रखो, वो ग्रुपिंग सेलेक्टर है। और आईडी और क्लास क्या होता है, आईडी मीन्स यूनिक, हमेशा HTML एलिमेंट में वो एक ही बार आएगा तो उसके लिए हम लोग आईडी यूज करने वाले हैं। और आईडी सेलेक्टर किससे समझता है, आईडी के लिए कौन सा सिंबल होता है, हैश। क्लास सेलेक्टर मल्टीपल टाइम्स, आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स अगर आपको स्टाइल देना है, मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको स्टाइल देना है, सो दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज क्लास सेलेक्टर। मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर मुझे क्लास देना है तो मुझे क्लास सेलेक्टर यूज करना पड़ता है। और क्लास सेलेक्टर किससे कौन सा सिंबल होता है क्लास सेलेक्टर के लिए, डॉट।
Okay, so this is all about the grouping selector, ID selector and class selector. In next class, we are going to see some new selectors. If you have any doubt, please ask me. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe, stay at home and happy learning.